Good morning, students. Today we'll discuss about the quadratic equation. We continue the quadratic equation exercise 4.3. Okay, this is exercise 4.3. We have done up to question number 5. Now we discuss question number 6. The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field. The question is कि हमारे पास एक rectangular field है. This is the rectangular field in the shape of rectangle. Okay, जो इसका diagonal है उसकी shorter side से 60 मीटर ज़्यादा है. That means if shorter side be x, then diagonal is x plus 60. Okay, and the second condition is the longer side is 30 meter more than the shorter side. That means the longer side, this is the length, this is the breadth. The longer side is 30 meter more. 30 meter more means x plus 30. X is the shorter side, then 30 meter extra longer side है. Okay, now we'll start our question. First of all, let the shorter side be x meter. Okay, therefore the longer side equals to x plus 30 meter and the diagonal is x plus 60 meter. Okay, now you know that interior angles of rectangle, each interior angle is 90 degree. This is 90 डिग्री. ओके, अगर ये 90 डिग्री है तो हमारे पास DAB एक राइट ट्रायंगल बनी है. ओके, और राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं जिसमें दिस इज़ द हाइपोटेन्यूज. जो आपका रेक्टेंगल का डायगोनल है वो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज का काम करेगा. ओके, इसमें से एक आपका परपेंडिकुलर और एक आपका बेस. Okay, now using Pythagoras theorem, we have BD square. BD is the hypotenuse. The Pythagoras theorem is hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. That means BD square equals to AB square plus AD square. Okay, BD square means x plus 60 square equals to x plus 30 square. AB की वैल्यू क्या है यहाँ पर? That is the base, x plus 30, and AD is x square. Now open the brackets. Square of x plus 60, that means a plus b whole square, that is a square plus b square. 60 square is 3600 plus 2 into a into b, that means 120x, and x plus 30 square x square, b square means 30 square 900 plus 2ab means 2 multiply x multiply 30 and plus x square. Now simplify our equation and we get, you can cancel x square to x square. Okay, now 3600 plus 120x equals to x square plus 900 plus 60x. Okay, now shift these two terms on the right side, that is x square plus 60x. 120 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस 120x एंड प्लस 900 माइनस 3600. ओके, दैट मीन्स x square minus 60x minus 2700, that is equal to 0. Now factorize the middle term, factorize the equation.
स्प्लिट द मिडल टर्म एक्स स्क्वेयर माइनस, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन -2700 आनी चाहिए, ओके। और उन दोनों नंबर्स की सब्ट्रैक्शन हमारे पास -60 आनी चाहिए, ओके। देन तो हमारे पास अगर वो नंबर कौन से होंगे, वो नंबर जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है 2700, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हम करें वो हमारे पास क्या है 60x आए। दैट मीन्स हमारे पास क्या आया 90x माइनस का और प्लस 30x, -90 + 30 दैट इज़ 60, ओके। -2700 इक्वल्स टू 0। नाउ x is common from these two terms, x minus 90 plus 30, x minus 90 that is equal to 0. We have two factors, x minus 90 and x plus 30. From the first, either x minus 90 equals to 0 or x plus 30 equals to 0. From the first factor we get x equals to 90 or x equals to -30. -30 is rejected. Why? Why it is rejected? Because side can never be negative. Side of any rectangle can never be negative. Therefore we consider x equals to 90, hence the shorter side is 90 meter and longer side is 120 meter. 90 plus 30, okay. Longer side is 90 plus 30, that is 120 meter. It is our question. Now our seventh question is, the difference of square of two number is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. That means there are the square of two numbers. There are the two numbers जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, ओके। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है. दैट इज़ आवर क्वेश्चन. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सॉल्यूशन इज लेट द वन नंबर इज x. हम क्या करते हैं, इसमें दो नंबर लेट कर लेते हैं क्योंकि वी हैव टू नंबर्स एंड द अदर नंबर इज y. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, दोनों नंबर का डिफरेंस क्या हुआ 180. यू कैन टेक एज वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. अगर हमने एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर लिया है दैट मीन्स वी सब्ट्रैक्ट वाई स्क्वेयर फ्रॉम एक्स स्क्वेयर. दैट मीन्स x इज़ द लार्जर नंबर. किसी के स्क्वेयर में से किसी दूसरे नंबर का स्क्वेयर अगर हम माइनस कर रहे हैं और रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिल रहा है तो दैट मीन्स x क्या हुआ, लार्जर नंबर. अगर ये लार्जर नंबर है तो इसका 8 टाइम्स क्या होगा, स्मॉलर नंबर के स्क्वेयर के इक्वल. अब हम इस वाली वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. ओके, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. ओके, वी कांट यूज टू वेरिएबल्स इन एन इक्वेशन टू सॉल्व द equation or to find the roots. Now put the value of y square equals to x in equation first and we get, हमने क्या किया है इसमें, y square की जगह 8x पुट किया है तो x square एज इट इज़ रहेगा, y square की जगह 8x पुट कर दिया और 180 इक्वल में है ही. Now our equation is x square minus 8x plus 180 equals to 0. Now 8x को हम स्प्लिट करेंगे और ऐसी दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन -180 आए. दैट मीन्स एक्स स्क्वेयर माइनस 18x प्लस 10x. 18 10 जा 180 एंड -18 प्लस 10 द रिजल्ट इज -8.
equals minus 180 equals to 0. X is the common from the first two term, that means x minus 18 plus 10 is the common from the last two terms, then x minus 18 equals to 0. Okay, we have the two factors x minus 18, x plus 10 equals to 0. Either x minus 18 equals to 0 or x plus 10 equals to 0. From the first factor we get x equals to 18 और x equals to minus 10. अब इसमें हमारे पास ये तो कहा नहीं गया था कि दोनों ही नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था. दैट मीन्स हम नेगेटिव वाली सिचुएशन को भी कंसीडर कर सकते हैं. तो पहले हम इसी को ट्राई करते हैं. दैट मीन्स अगर हमारे पास x माइनस 10 हुआ तो वाई स्क्वायर कितना होगा, हमें y की भी वैल्यू निकालनी है, और वाई स्क्वायर कितना होगा 8 टाइम्स ऑफ x, दैट मीन्स माइनस 80. अब यहाँ पर आके हम इस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे. वाई? द रीज़न इज़ कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता. स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव. वी टेक x इक्वल्स टू 18, दैट मीन्स हमारे पास सेकेंड ऑप्शन कौन सा बचा कि x की वैल्यू 18 आए. देन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई 8, दैट मीन्स 8 टाइम्स ऑफ x, दैट इज़ 144. तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस 12. माइनस 12 का स्क्वायर भी 144 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर भी 144 होता है. तो हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई. हैंस द टू नंबर्स आर 18 and 12 or 18 and minus 12. Understand? Now next question is, a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less than for the same journey. Find the speed of the train. First of all, try to understand the question. क्वेश्चन इज़ कि एक ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 360 किलोमीटर का. सेम स्पीड है उसकी थ्रू आउट द जर्नी. इफ़ द स्पीड हैड बीन, अगर ऐसा होता कि ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दिया जाए, तो देखो स्पीड और टाइम दोनों हमारे क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक है, अगर हम एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए स्पीड को कम कर देते हैं तो पहले की बजाय टाइम ज़्यादा लगेगा. अगर स्पीड को ज़्यादा कर देते हैं तो डेफिनेटली टाइम कम लगेगा. दैट मीन्स इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस देन फॉर द सेम जर्नी. अगर स्पीड को, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, स्पीड को 5 किलोमीटर ज़्यादा कर दिया जाए तो टाइम 1 घंटा कम लगेगा. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. स्पीड ऑफ द ट्रेन आपको फाइंड आउट करनी है, तो हमें लेट भी क्या करना होगा, स्पीड ऑफ द train. Let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर. Therefore, अगर हमारे पास स्पीड x है तो 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, 360 डिवाइड बाई x. ये क्यों होगा, क्योंकि जो टाइम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. दैट मीन्स फर्स्टली टाइम हमारे पास ये होगा. नाउ if the speed had been 5 km per hour more than the new speed of the train, वो कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर बढ़ गई, तो पहले के कंपैरिजन में कितनी हो गई, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. नाउ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन 360 डिवाइड बाय x प्लस 5. अब स्पीड बढ़ गई है तो टाइम कम लगेगा, और वो टाइम कितना कम लग रहा है, 1 hour. दैट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा हुआ था कि जो पहला टाइम लगा वो ज़्यादा लगा, जो दूसरा टाइम लगा वो कम लगा पहले के कंपैरिजन में, और 1 hour कम लगा. पहले वाला टाइम 360 डिवाइड बाई एक्स, दूसरे वाला टाइम 360 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1. नाउ टेक LCM x एंड x प्लस 5. x और x प्लस 5 हमने LCM लिया, तो x तो इसका डिनोमिनेटर है, तो हमारे जो इसके न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, बचा हमारे पास LCM में से x प्लस 5. तो 360 मल्टीप्लाई x प्लस 5 माइनस 360 इंटू एक्स इक्वल्स टू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसमें क्या होगा हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 5.
जब हम कंप्लीट इक्वेशन का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास वो एलसीएम है वो एलिमिनेट हो जाता है, ओके, उसे हम कंसिडर नहीं करते। देन सॉल्व दिस न्यूमरेटर, देन इक्वेशन इज 360x प्लस 1800 माइनस 360x इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। ये माइनस 360x प्लस 360x कैंसिल आउट हो गया। नाउ इक्वेशन इज x स्क्वेयर प्लस 5x and 1800 becomes minus 1800 equals to 0. Now factorize our equation, split the middle term 45x into minus 40x. Multiplication is 1800 and their subtraction is plus 5x. Okay. Now take x as the common, then x plus 45 minus 40 is the common. यहाँ से आपके पास 40 तो कॉमन आ गया, बचा x और माइनस 1800 में से 40 कॉमन आया तो आपके पास बचा 45। नाउ x प्लस 45 और x माइनस 45 40 ये इसके दो फैक्टर्स बने। अगर x प्लस 45 या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा, क्योंकि तभी आपकी कंप्लीट इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, ओके। अब x प्लस 45 हम जब लेते हैं तो x की वैल्यू माइनस 45 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 40 आई। क्या हमारे पास किसी भी व्हीकल की स्पीड नेगेटिव में पॉसिबल है? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई वी रिजेक्टेड x इक्वल्स टू माइनस 45 बिकॉज द स्पीड ऑफ द ट्रेन कैन नेवर बी नेगेटिव, हैंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ question number 9. The two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. हमें ये बताना है कि जो दोनों टैंक में दोनों टैप है वो टैंक को कितनी देर में सेपरेटली फिल करेगी। ओके, क्वेश्चन क्या है कि दोनों टैप जो एक साथ वर्क करती है, एक साथ चलती है, तो उन्हें टैंक को फिल करने में टाइम लगता है 9 3/8 आवर्स का। एक का डायमीटर कम है, एक का डायमीटर ज़्यादा है। सीधी सी बात है कि जिसका डायमीटर बड़ा होगा, दैट मीन्स मान लो एक का डायमीटर है आपके पास, ये इसका डायमीटर, ओके। अगर एक का डायमीटर बड़ा है तो इसमें से पानी ज़्यादा आएगा, दूसरे वाली का डायमीटर अगर छोटा है तो उसमें से पानी कम आएगा, ओके। दैट मीन्स हम सबसे पहले टाइम लेट कर लेते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक इज x आवर्स एंड द टाइम टेकन बाय द लार्जर डायमीटर टू फिल द टैंक x माइनस 10 आवर्स। टोटल टाइम कितना लगता है दोनों टैप्स को? 75/8 आवर्स का, ओके। तो हम इनका एक एक घंटे का टाइम निकालते हैं, क्योंकि टाइम और वर्क में हम जब सिर्फ वर्क कंपेयर कराते हैं, ओके, 1 डे का हो 1 आवर का हो, देन हमारे पास क्या होगा? वर्क डन बाय द स्मॉलर डायमीटर टैप इन 1 आवर 1/x एंड वर्क डन बाय द लार्जर डायमीटर टैप इन 1 आवर 1/x माइनस 10, ओके। तो वर्क डन बाय द both the tap together in 1 hour, that is 8/75, okay। 75/8 hours टोटल लग रहे थे, तो वर्क कितना होगा उनका? 8/75। now the total work done by the two taps 1/x, एक तरफ तो हमारे पास ये हुआ, दूसरी तरफ हमारे पास क्या था? 1 आवर का वर्क ये था, ओके। 8/75 दोनों को इक्वेट करा दिया। नाउ take the LCM x 75 x minus 10, okay, and solve the question। 75x, यहाँ से हमने जब LCM लिया तो यहाँ पे आपके पास x तो इसका डिनोमिनेटर है, दैट मीन्स 75 इंटू x माइनस 10 प्लस 75 इंटू x इक्वल्स टू 8 इंटू x माइनस 10, देन 75x माइनस 750 प्लस 75x इक्वल्स टू 8x स्क्वेयर माइनस 80x 150x 75 plus 75, okay। Solve the equation and finally we get our equation
8x square minus 230x plus 750 equals to 0. टेक द कॉमन 2. यहाँ से 2 कॉमन लेना है, तो यहाँ से आपके पास क्या बचा, यहाँ से जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4x स्क्वेयर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0. हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया. अब हमारे पास आई फाइनली ये इक्वेशन आ गई. अब हमें क्या करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है. इसको स्प्लिट करके इसके 2 फैक्टर्स कर लिए, एक 100 और एक 15. वाई 4 इंटू 375 इज़ 1500, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी 1500 होनी चाहिए. फर्स्ट और लास्ट की जितनी मल्टीप्लिकेशन होगी इन दोनों फैक्टर्स की भी उतनी ही होनी चाहिए. ओके, नाउ टेक द कॉमन 4x फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स, देन x minus 25 minus 15 is the common, then x minus 25, and we get the factors 4x minus 15 and x minus 25. Either 4x minus 15 equals to 0 होगा और x minus 25 equals to 0 होगा. फर्स्ट से हमें x equals to 15/4 मिलेगा और यहाँ से हमें x equals to 25. Now if x equals to 15/4, then time taken by the larger diameter. ये x किसका था, स्मॉलर डायमीटर का. तो लार्जर डायमीटर वाली पाइप कितना टाइम लेगी, 15/4 minus 10. वाई, then that is x minus 10. Then this is 25/4 hours, which is not possible. माइनस में टाइम होता नहीं है कभी भी. Then time taken by the smaller diameter pipe to fill the tank is 25 hours, and the time taken by the larger diameter pipe to fill the tank is 25 minus 10, that is 15 hours. Okay, I hope you understand this question. Try to understand, give your better way. Okay, thank you.